اس سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ نریشن اور انڈائریکٹ نریشن یعنی ڈائریکٹ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کا فرق سمجھا تھا. اس کے بعد ہم نے رپورٹڈ سپیچ میں ٹینسز کے اصولوں کے متعلق جانا تھا، یعنی ڈائریکٹ سپیچ کو رپورٹڈ سپیچ میں تبدیل کرتے وقت مختلف قسم کے ٹینسز یا پھر فعل کی جو تبدیلی ہوتی ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا. تو اس ویڈیو میں اب ہم رپورٹڈ سپیچ میں ٹائم کے چینج کے متعلق سمجھیں گے. رپورٹڈ سپیچ جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ایسا کیا جاتا ہے تو ٹینس کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹائم چینج یعنی وقت کی تبدیلی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو مل کر پڑھتے ہیں. If the reported sentence contains an expression of time, you must change it to fit in with the time of reporting. یعنی اگر رپورٹڈ سینٹنس کے اندر وقت کے تعین کے متعلق بات ہو رہی ہو تو ہمیں اس وقت کے حساب سے اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے جب ہم اسے رپورٹ کر رہے ہوں. اس بات کو سمجھنے کے لیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں. For example, we need to change words like here and yesterday if they have different meanings at the time and place of reporting. یعنی کہ اگر ڈائریکٹ سپیچ کے اندر یعنی جب لفظ پر لفظ کسی کے الفاظ کو دہرایا جاتا ہے تو ان کے اندر اگر here یا yesterday جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو، here یعنی یہاں اور yesterday جیسے کل، گزشتہ کل، تو ان الفاظ کو رپورٹڈ سپیچ میں رپورٹ کرتے وقت تبدیل کر دیا جائے گا. جیسے کہ ناؤ ڈائریکٹ سپیچ میں استعمال کیا جائے گا، یا پھر اگر ڈائریکٹ سپیچ میں ناؤ کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹے کے بعد یعنی آفٹر 24 hours آپ اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں یا اس کے متعلق بتاتے ہیں تو یہ ہو جائے گی انڈائریکٹ سپیچ. اور اب اس بات کو چونکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تو اب آپ ناؤ کے بجائے کیا کہیں گے؟ یسٹرڈے، کیونکہ آپ ایک ایسی بات کے متعلق بتا رہے ہیں جو کہ ایک دن پہلے ہو چکی ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. Today's lesson is on، معاف کیجیے گا اس ایگزامپل کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. She said today's lesson is on presentations. یعنی اس نے کہا کہ آج کا لیسن یا سبق پریزنٹیشنز کے متعلق ہے. پریزنٹیشنز یعنی تعارف. تو یہ تھی ڈائریکٹ سپیچ فارم جس میں ٹوڈے یعنی آج کے دن کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اسی بات کے متعلق جب آپ 24 گھنٹے کے بعد بات کریں گے تو آپ اس طرح سے کہیں گے She said yesterday's lesson was on presentations. اور ایسا آپ کب کریں گے؟ جب آپ یہی بات اپنے الفاظ میں کہیں گے، یعنی یہ ہوگی رپورٹڈ سپیچ فارم. تو یہاں ٹینس کی تبدیلی بھی ہے، جیسے کہ از ہو گیا واز، اور اس کے علاوہ ٹوڈے کی جگہ اب یہاں آ رہا ہے یسٹرڈے. تو آج کی جگہ ہو جائے گا کل یعنی گزشتہ کل. یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں She said yesterday's lesson would be on presentations. تو اب ہم مختلف ایکسپریشنز آف ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں جب ہم ڈائریکٹ سپیچ کو رپورٹڈ سپیچ میں تبدیل کرتے ہیں. اور جب رپورٹڈ سپیچ اور ڈائریکٹ سپیچ میں ایک یا ایک سے زیادہ دن کا فاصلہ ہو، تو اگر ڈائریکٹ سپیچ میں دس ایوننگ کہا جا رہا ہے تو رپورٹڈ سپیچ میں وہ ہو جائے گا دیٹ ایوننگ. ٹوڈے ہو جائے گا یسٹرڈے، دیز ڈیز کی جگہ آئے گا دوز ڈیز، ناؤ کی جگہ دین، اے ویک اگو کی جگہ اے ویک بیفور، لاسٹ ویکینڈ کی جگہ دا ویکینڈ بیفور لاسٹ یا پھر دا پریویس ویکینڈ، ہیئر کی جگہ آئے گا دیر، نیکسٹ ویک کی جگہ دا فالوئنگ ویک، ٹمورو کی جگہ دا نیکسٹ ڈے یا پھر دا فالوئنگ ڈے. تو اس طرح سے رپورٹڈ سپیچ میں
टाइम के चेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। In addition, if you report something that someone said in a different place to where you heard it, you must change the place here to the place there. तो जैसा कि हमने पहले टेंस की तब्दीली को समझा था, उसके बाद अब हमने समझा है वक्त की तब्दीली को। इसी तरह से ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब रिपोर्टेड, माफ़ कीजिएगा, जब डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड में तब्दील किया जाता है तो उसमें ऐसे अल्फाज जो कि जगह के मुतालिक इशारा कर रहे हों उनको भी तब्दील किया जाता है, जैसे कि हियर तब्दील हो जाएगा देयर में। इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। पहला जुमला होगा एट वर्क, यानी काम पर जहां वो बात कही गई है, और फिर दूसरा जुमला है एट होम, यानी घर वापस आने के बाद उस बात के मुतालिक रिपोर्टेड फॉर्म में बात की जा रही है। पहली एग्जाम्पल देखते हैं, यह है डायरेक्ट स्पीच। शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर। यह है डायरेक्ट स्पीच, इसकी रिपोर्टेड फॉर्म होगी शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर, यानी पहले जुमले में ये पूछा गया था, उसने मुझसे पूछा तुमने यहाँ कितना अरसा काम किया है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया था उसने मुझसे पूछा मैंने वहाँ कितना अरसा काम किया था। तो हियर यानी यहाँ तब्दील हो गया देयर यानी वहाँ में। इसे हम कह सकते हैं चेंज ऑफ प्लेस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोनाउन भी चेंज होता है। इन रिपोर्टेड स्पीच द प्रोनाउन ऑफन चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, इस बात का ताल्लुक इस पिछली एग्जाम्पल से है, जैसे कि हमने देखा था पहले जुमले में कहा गया था हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया था शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आईड वर्कड, और यहाँ यू की जगह अब आ रहा था मी। माफ कीजिएगा, यहाँ प्रोनाउन यू तब्दील हो जाएगा आई में। तो इस तरह से दुरुस्त एग्जाम्पल है यू और आई। तो इस एग्जाम्पल की मदद से एक मरतबा फिर देखते हैं, जैसे कि यहाँ डायरेक्ट स्पीच में कहा गया था हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड, और रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया है हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड। अब हम रिपोर्टिंग स्पीच के मुतालिक चंद और अहम बातों को जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स said, told and asked are the most common verbs used in indirect speech। यानी इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच में आमतौर से said, told और asked के verbs का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। We use asked to report questions. For example, I asked Sarah what time the lesson started. तो asked के verb का इस्तेमाल ज़्यादातर क्वेश्चंस यानी सवालों को रिपोर्ट करते वक्त किया जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है मैंने सारा से पूछा कि लेसन किस वक्त शुरू होगा। आगे पढ़ते हैं। वी यूज टोल्ड विद एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सारा टोल्ड मी शी फेल्ट टायर्ड। ऑब्जेक्ट के साथ टोल्ड के वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है सारा ने मुझे बताया कि वो थकी हुई थी। माफ कीजिएगा, सारा ने मुझे बताया कि वो थकावट महसूस कर रही थी। जैसे कि इस जुमले में सब्जेक्ट है मी और सारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ टोल्ड के वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। माफ कीजिएगा, इस दी गई एग्जाम्पल में सारा जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट, जबकि मी एक ऑब्जेक्ट है और टोल्ड का इस्तेमाल इसके साथ इसीलिए किया गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो कि अमल कर रहा होता है, जबकि ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसकी तरफ अमल किया जाता है। जैसे कि यहाँ कहा गया था सारा टोल्ड मी, यानी सारा ने मुझे बताया, तो सारा है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ब का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ हो तो फिर यहाँ सेड की जगह टोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम सारा सेड मी कहेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा,
अब आगे पढ़ते हैं we usually use said without an object, यानी हम said का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के बगैर करते हैं. For example, Sarah said she was going to teach online, यानी सारा ने कहा कि वो ऑनलाइन पढ़ाएगी. अब यहाँ said के बाद ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट का प्रोनाउन आ रहा है जो कि है she, यानी ये सारा के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है और यहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सारा खुद अपने मुतालिक ही बात कर रही है. तो अब यहाँ told की जगह said का इस्तेमाल करेंगे. सारा said she was going to teach online. अब आगे पढ़ते हैं if said is used with an object we must include to. अगर जुमले में said के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके साथ फिर to का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा. For example, Sarah said to me that she'd never been to China. यानी सारा ने मुझे बताया कि वो कभी चाइना नहीं गई. तो अब इस जुमले में सब्जेक्ट था सारा और यहाँ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है मी और वर्ब के तौर पर said के लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ to का आना लाजमी है. तो यह है सारा said to me. अगर to का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हो जाएगा सारा said me, जो कि दुरुस्त नहीं होगा. या फिर यहाँ जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है तो said to की जगह told का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. जैसे कि आगे भी कहा जा रहा है we usually use told. For example, Sarah told me that she'd never been to China. There are many other verbs we can use apart from said, told and asked. These include accused, admitted, advised, alleged, agreed, apologized, begged, boasted, complained, denied, explained, implied, invited, offered, ordered, promised, replied, suggested, etc. तो ये मुख्तलिफ किस्म के verbs हैं जिनका reported speech में इस्तेमाल किया जा सकता है. said, told और asked के verbs के अलावा. Using them properly can make what you say much more interesting and informative. इनका दुरुस्त तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपकी बात बहुत दिलचस्प और मौसर हो सकती है और आपकी बात ज़्यादा वाज़ेह भी हो सकती है. इन एग्जाम्पल्स की को देखते हैं, इन्हें हम रवानी से पढ़ेंगे. आपने ही के बाद आने वाले लफ्ज़ पर गौर करना है. ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स हैं. तो चलिए अब इन जुमलों को मिलकर पढ़ते हैं. He asked me to come to the party. अगला जुमला he invited me to the party. Next, he begged me to come to the party. Next, he ordered me to come to the party. Next, he advised me to come to the party. और आखिरी एग्जाम्पल he suggested I should come to the party. तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से मुख्तलिफ वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट करने के लिए. और अब हम आखिर में देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच से that के इस्तेमाल पर क्या फ़र्क पड़ता है. इन रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड that is often used, यानी रिपोर्टेड स्पीच में that का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल he told me that he lived in China. However, that is optional. पुराने वक्तों में that के इस्तेमाल को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बहुत ज़रूरी समझा जाता था, लेकिन अब ये ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें या फिर ना करें. फॉर एग्जाम्पल he told me he lived in China. अब वही जुमला that के इस्तेमाल के बगैर लिखा गया है. और अब एक ख़ास बात, that is never used in questions. Instead, we often use if. यानी जब हम अगर किसी सवाल को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम that के बजाय if का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल he asked me if I would come to the party. इस जुमले में अगर हम if की जगह that का इस्तेमाल करें यानी he asked me that I would come to the party तो ये दुरुस्त नहीं होगा. तो ये थी रिपोर्टेड स्पीच के मुतालिक तमाम अहम रूल्स और मालूमात. इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए
اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.